فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے لوک سبھا میں ضروری عوامی مسائل کے دوران کہا کہ حج کمیٹی میں کرپشن کی وجہ سے انڈیا کے حاجیوں کو حج کے دوران بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہوں نے حج کمیٹی کے کرپشن کی CBI انکوائری کی مانگ کی ہے۔ اسد الدین اویسی جی۔ محترم اسپیکر صاحب، حج کمیٹی میں جو کرپشن چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہ رہا ہوں۔ حج کمیٹی کے CEO کا اپائنٹمنٹ کا ایڈورٹائزمنٹ 3/11/2023 کو دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود بھی ایک پرماننٹ CEO کو اپائنٹ نہیں کرنے کی وجہ سے حج کمیٹی میں جو حاجی ہندوستان سے سعودی عرب جاتے ہیں وہاں پر جو کرپٹ افیشل ہے سب سٹینڈرڈ بلڈنگ کا سلیکشن کرتے ہیں اور ہمارے ہندوستان کے حاجیوں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ CEO نہیں رہنے کی وجہ سے وہاں کے عہدیداروں نے مینا، مزدلفہ، عرفات میں کمپنی کو جو دیا جاتا ہے حاجیوں کی خدمت کے لیے ان سے پیسے لیے۔ پرائیویٹ ٹور آپریٹر سر، ان کا لائسنس رینیو نہیں کیا جاتا جب تک ایک ایک حاجی کے اوپر 1 لاکھ روپے رشوت نہیں دی جاتی ان افیشلز کو۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ان افیشلز کا 8 سال سے منسٹری میں ہے، CSS رولز کے خلاف ہے، ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ ایک عہدیدار کو سسپینڈ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اس کے رشتہ دار دلی میں کام کر رہے ہیں 50-60 ہزار تنخواہ پر۔ غیر ضروری طور پر ممبئی میں 35 لوگوں کو نکال دیا گیا نوکری سے۔ میرا آپ کے ذریعے سے حکومت سے مطالبہ ہے کہ CBI کے ذریعے حج کمیٹی کرپشن کی انکوائری کروائی جائے، ان تمام عہدیداروں کو ہٹایا جائے اور آخر میں سر پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کے لیے گورنمنٹ ایک سسٹم بنائے تاکہ ان پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کو کرپشن سے بچایا جائے۔ حج کمیٹی سے جو غریب ہندوستان کے حاجی جاتے ہیں ان کو تکلیف سے بچایا جائے، میرا حکومت سے مطالبہ ہے۔ دلیپ شیکیا جی۔ شہر حیدرآباد کے جبلی ہلز یوسف گڑا میں چیک پوسٹ پر ٹریفک اہلکاروں کی جانب سے خصوصی مہم کے تحت گاڑیوں کی چیکنگ کی گئی اور اس دوران ٹریفک SI کی ہدایت پر گاڑیوں پر لگے ٹرپل سواری اور بلیک فلم کو ہٹایا گیا ہے، جو کہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہ کرنے والے روڈ یوزرز کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں۔ تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے تصویر پر پھول چڑھائے اور آچاریہ کرتاپلی جے شنکر کو ان کی سالگرہ کے موقع پر تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن ہیڈ آفس میں خراج عقیدت پیش کیا، جہاں تلنگانہ مینارٹی فائنانس کارپوریشن کے تمام افسران اور عملہ اس موقع پر موجود تھا۔ سوچھ دانم گریننگ پروگرام کے تحت کماٹی کالونی، ناگرجنا نگر کالونی اور ہنومان نگر تاناکا میں ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام میں اعزازی ڈپٹی میئر متے سری لتا شوبھن ریڈی نے افسران کی قیادت میں بیداری کا مظاہرہ کیا، ہر گھر کے اطراف کو صاف ستھرا اور پانی کے ذخائر سے پاک رکھنے کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ پودے لوگوں میں تقسیم کرے اور ماحولیات کی حفاظت کرے۔ ڈپٹی میئر نے کہا کہ ارد گرد کو صاف ستھرا رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ اس پروگرام میں JHMC AMC ہیمالتا، اینٹومولوجی راشیکھر، DPO
त्रिवानी, सफाई अमला और कॉलोनी के रिहायशियों ने हिस्सा लिया। शहर निजामाबाद के कंटेमेश्वर के इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत शाह फ़तेहुल्लाह बियाबानी चिश्ती दरगाह की कीमती अराज़ी को गैर मजाज तरीके से कब्जा करने की कोशिश करने पर कमेटी के जिम्मेदारान वक्फ इंस्पेक्टर फौरी हरकत में आते हुए कब्जा करने वाले शख्स के खिलाफ पुलिस में शिकायत की। तफसीलात के मुताबिक शहर निजामाबाद के ग्रिया कटेश्वर के इलाके में वाक़ दरगाह हज़रत रास्ते शाह वक्तुल्लाह बियाबानी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह रिहायशी पहाड़ पर वाक़ है और इसके तहत कब्रिस्तान है। इस कीमती और इसके तहत जुमला 12 एकड़ अराजी है गैर मजाज, जिसका साल 2022 सर्वे किया गया था। साफ करना और तहसीलदार नॉर्थ और वक्फ अहदेदारों ने मिलने पर ज्वाइंट सर्वे करते हुए वाज़े तौर पर वक्फ बोर्ड रिपोर्ट भी पेश की थी। सर्वे में वाज़े तौर पर काम को बढ़ाया गया कि आबादी में 1 एकड़ 27 के बारे में कितनी है और सर्वे नंबर 360 में 23 के जुमला कब्जे किए जा रहे हैं। शहर के ऊपरी टेकटरी के इलाके में वाक़ अराजी पर गैर मजाज तौर पर कब्जा किया गया, लेकिन वक्फ बोर्ड की जानिब से अभी तक कोई इक़दामात नहीं किए गए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC के अहदेदारों और प्रोजेक्ट अहदेदारों के साथ कारवान हल्के में ज़ेर-ए-इल्तवा तरक्याती कामों के सिलसिले में एक जायज़ा मीटिंग मुनक़िद की। इस मीटिंग के दौरान MLA के साथ मजलिसी पार्टी के कॉरपोरेटर और मजलिसी पार्टी प्राइमरी यूनिट के सदर मौजूद थे। सिविल सप्लाई और आपाशी के वजीर कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस हुकूमत इंदिरम्मा हाउसिंग स्कीम के तहत आइंदा 5 सालों में तेलंगाना में तमाम मुस्तकीन को मकानात फराहम करने के लिए पाबंद अहद है। हुजूर नगर कस्बे के रामस्वामी गुट्टा में एक हाउसिंग कॉलोनी का मुआयना करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उत्तम कुमार रेड्डी ने गुज़िश्ता 10 सालों में हाउसिंग सेक्टर को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करने पर BRS के साबिक़ा दौरे हुकूमत पर तनकीद की। उन्होंने कहा है कि 2 BHK हाउसिंग स्कीम के इर्द गिर्द एक हाइप पैदा की गई थी जो हकीकत में एक जुमला और खोखला वादा साबित हुई। उन्होंने के चंद्रशेखर राव की सरबराही वाली पिछली हुकूमत पर बेघर लोगों को धोखा देने और कुछ नहीं पहुंचाने का इल्जाम लगाया। इसके बजाय KCR हुकूमत ने कांग्रेस के दौर में शुरू किए गए कमजोर तबकात के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को रोक दिया। उत्तम कुमार रेड्डी ने मिसाल देते हुए कहा कि हुजूर नगर टाउन में इंदिरम्मा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसमें 2160 यूनिट्स हैं 2013-14 में शुरू किया गया था जब वो कांग्रेस हुकूमत में हाउसिंग मिनिस्टर थे। BRS हुकूमत ने इस मंसूबे को 10 साल तक इल्तवा में रखा। मुमकिना तौर पर इस यकीन की वजह से कि क्रेडिट उन्हें आएगा। दिसंबर 2023 में इख्तिदार में आने के फौरन बाद प्रोजेक्ट्स को बहाल किया और काम को तेज किया जो कि अब तरक्की याफ्ता हैं। उन्होंने कहा है कि तामीर के मरहले में हम अगले 3 माह में 2160 यूनिट्स बेघर अफराद के हवाले कर देंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान के MLA कौसर मुहिउद्दीन ने GHMC कमिश्नर और ZC खैरताबाद से बातचीत की है और इस दौरान सफाई के मसाइल के साथ साथ शाह हातिम झील, हुडा पार्क, बालकापुर नाला और मूसा नदी की बाकायदा फॉगिंग, मानसून सीजन के आगाज के बाद से वायरल बुखार में इजाफा हो रहा और उनसे गुजारिश की कि महकमे एंटोमोलॉजी को बाकायदा फॉगिंग की हिदायत करें। 10 करोड़ के ज़ेर-ए-इल्तवा कामों और ज़ेर-ए-इल्तवा मंसूबों को मनसूख करें। कारवान हल्के में स्ट्रीट लाइट्स का ना चमकना भी एक मसला है। नारायणा CPI सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ने कहा है कि बांग्लादेश की सदर शेख हसीना अपनी आमिराना हुकूमत की वजह से मुल्क छोड़ने पर मजबूर हो गई है और कहा कि CPI ने बांग्लादेश तहरीक का खैर मकदम किया है। देखिए नारायणा CPI सेक्रेटरी नेशनल काउंसिल ने इस ज़िमन में मजीद क्या कहा। పార్టీ కూడా ఎన్నికల్లో పాల్గొకుండా బాయ్కాట్ చేశాయి. దాంతో ఏకపక్షంగా గెలిచింది. అది ప్రజాస్వామ్యం గెలిచి అనుకున్నారు. కానీ ప్రతిపక్షాల పార్టీ పాల్గొకుండా ఏకపక్షంగా గెలవడం అనేది ఒక నియంత్రణకి దారితీసింది. చివరికి ఆమె నాకు ఎదురు అనుకునింది. కానీ విద్యార్థి ఉద్యమం, ప్రజల ఉద్యమం తీవ్రతలతోటి చివరికి ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమం తలవక తప్పలేదు. ఎవరైనా సరే నియంత్రిత పోకలు ఇస్తే ఇలాంటి గుణపాఠం వస్తుంది. ఇప్పటికైనా ఇలాంటి పద్ధతులను మానుకోవాలని పాల్గొని విజ్ఞప్తి చేస్తానన్నా. అదే సందర్భంలో ఈ
బంగ్లాదేశ్ విద్యార్థులు ప్రజల యొక్క ఉద్యమానికి జయప్రదానికి అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నాను. महात्मा ज्योतिबा फुले प्रजा भवन में मुनक़दा प्रजावानी प्रोग्राम में कुल 465 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अहदेदारों ने बताया कि रेवेन्यू से मुतल्लिक़ मसाइल से मुतल्लिक़ 117 दरख्वास्तें, महकमे सिविल सप्लाई से मुतल्लिक़ 45, महकमे बिजली से मुतल्लिक़ 31, महकमे पंचायती राज देही तरक्की से मुतल्लिक़ 39, अक़लियती बहबूद से मुतल्लिक़ 58 और दीगर महकमों से मुतल्लिक़ 175 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्नारेड्डी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ऑफिसर दोया ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दरख्वास्तें वसूल की। उन्होंने प्रजा भवन आने वालों के मसाइल दरियाफ्त किए। तेलंगाना मिनॉरिटी प्राइवेट रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एसोसिएशन आदिलाबाद के एक वफ्द ने मुतबदला मंडल एजुकेशन ऑफिसर डी सोमिया से उनके दफ्तर में खैरसुगाली मुलाकात की। उनकी आदिलाबाद में बाहैसियत MEO के तकर्री पर उन्हें मुबारकबाद पेश करते हुए गुलदस्ता पेश किया और उनकी शॉलपोशी भी की। TMPRS जिले सदर अमीरुद्दीन ने MEO से तंजीम का तारुफ पेश करते हुए मिनॉरिटी स्कूल्स के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की। उन्होंने दौरान बातचीत कहा कि मिनॉरिटी मदारिस इंतहाई कम बजट में चलने वाले तालीमी इदारे हैं, जहां पर अक्सरियत मुतवस्सित व गरीब तबके के बच्चों की है जो जेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। जिले सदर अमीरुद्दीन ने मजीद कहा है कि मिनॉरिटी स्कूल इंतजामिया दरपेश मसाइल के साथ साथ दीगर कई एक चैलेंजेस का सामना करते हुए तालीमी मैदान में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। KTR हरीश राव, BRS के रहनुमा KP विवेकानंद, गंगुला कमलाकर, जगदीश रेड्डी, कोट्टा प्रभाकर रेड्डी, राज्यसभा के अरकान में पार्लियामेंट दामोदर राव वर्डी, राज रविचंद्र, साबिक BRS और वजीर इर्राबली दयाकर राव पालूरू ने तेलंगाना के नजरिए साज प्रोफेसर जयशंकर को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर KTR BRS वर्किंग प्रेसिडेंट ने कहा कि जयशंकर शुरू से ही तेलंगाना तहरीक के साथ थे। दिल्ली में KCR के साथ जयशंकर ने 36 पार्टियों को राजी किया और तेलंगाना के हक में खत भेजे। तेलंगाना में KCR की हुक्मरानी जयशंकर की तहरीक से चलाई गई। जयशंकर के नाम से हमने जिले बनाया और ज़रई यूनिवर्सिटी का नाम जयशंकर के नाम पर रखा। వాళ్ళ వారికి ఘనంగా నివాళులు అర్పిస్తా ఉన్నాం. ఏ తెలంగాణ కోసం అయితే జయశంకర్ సార్ జీవితం అంతా కష్టపడ్డారో ఇవాళ ఆ తెలంగాణ సాధించుకొని సవ్యమైన దిశలో 10 ఏళ్ల పాటు నడిచింది. భవిష్యత్తులో కూడా ఇప్పుడున్న పాలకులు ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారు కలలు కన్న తెలంగాణ సాధించే దిశగా మరిన్ని వారి ఆశయాలు నెరవేర్చే దిశగా కృషి చేయాలని కోరుతూ మరి పెద్దలు జయశంకర్ గారికి మా నాయకులు KCR గారు ఘనమైన నివాళులు అర్పించారు. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా పేరు పెట్టినా లేదా మన రాష్ట్ర వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ గారి పేరు పెట్టినా ఇవన్నీ కూడా కేవలం వారికి మా పార్టీ తరఫున, ప్రభుత్వం తరఫున, తెలంగాణ సమాజం తరఫున మేము అర్పించిన చిరు నివాళి. వారు ఎక్కడ ఉన్నా వారి ఆత్మ శాంతించాలని, వారు పూర్తి స్థాయిలో వారి ఆశీస్సులు ఎల్లవేళలా మాకు ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ జయంతి సందర్భంగా వారికి మా అందరి తరఫున तेलंगाना के नजरियाती आचार्य जयशंकर की यौम पैदाइश के मौके पर JHMC कमिश्नर अमरापली ने JHMC हेडक्वार्टर में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि आचार्य कोट्टापल्ली जयशंकर को तारीख में एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने तेलंगाना के काज के लिए आखिरी दम तक जदोजहद की। एडिशनल कमिश्नर के श्रीवास्तव, चंद्रकांत रेड्डी, यादगिर राव, CPAR मोहम्मद मुर्तुजा, ANC रामन्ना, जीवन HOD और दीगर ने इसमें शिरकत की। आंध्र प्रदेश के रियासती तालीम और IT के वजीर नारा लोकेश ने कहा है कि श्री कनका पटलम्मा की मां की ठंडी नजर के साथ मंगलगिरी हलके के लिए अच्छे दिन आए हैं। वजीर नारा लोकेश ने मंडल के पेड्डा कोंडूरू में श्री कनका पटलम्मा मंदिर में खुसूसी पूजा की। इसके बाद उन्होंने उनसे मिलने आने वाले गांव वालों का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया और उन सब के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। इस मौके पर गांव वालों से बात करते हुए लोकेश ने कहा कि वो यहाँ पर मंदिर में अम्मा के आशीर्वाद से हल्के की हमागिर तरक्की के लिए काम करेंगे। उन्होंने कहा कि मंगलगिरी हल्का अवामी हुकूमत में तेजी से तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन के दौरान किए गए तमाम वादों को तरजीही बुनियादों पर पूरा किया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది.
పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్నీ సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కాని మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.